तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 बी हाइव इंग्लिश में से चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I was born into a middle-aged, middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the eastern Madras state. My father, Jainul-Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashia Mama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो गैस, इस वीडियो में होता क्या है कि एक लड़का होता है, वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्म लेता है, जो कि एक आइलैंड टाउन रामेश्वरम के पास में है, ईस्टर्न वाइल मद्रास स्टेट में। उसके पापा का नाम जैनुलाब्दीन, जिनके पास ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन मतलब प्रॉपर एजुकेशन और ज्यादा वेल्थ यानी पैसे नहीं थे, पर इन एडवांटेजेस के होते हुए भी उनके पास विजडम थी, ट्रू जेनोसिटी और स्पिरिट थी। उनके एक हेल्पमेट थी, मतलब मदर ने उनकी हेल्पमेट जैसे एक्ट की। उनका नाम था आशी मम्मा। वो जो बच्चा है उसको एग्जैक्टली नंबर तो नहीं याद कि कितने लोगों को उसके मॉम ने खाना दिया, मतलब उनका पेट भरा है। पर काफी ज्यादा उसको इतना पता है कि आउटसाइडर्स उनकी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते थे। अभी आगे पढ़ते हैं। I was one of many children, a short boy with rather undisguised looks, born to tall and handsome parents. We lived in an ancestral house which was built in the middle of 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick and on the Mosque Street in Rameswaram. My austere का मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट और सीवियर। मतलब स्ट्रिक्ट थोड़ा सा, मतलब जो पर्सन डिसिप्लिन्ड हो थोड़ा। Osher father used to avoid all the essential comforts and luxuries. However, all necessities were not provided for food, in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब वो बताता है कि वो काफी चिल्ड्रनों में से एक था, एक शॉर्ट बॉय जिसके पास अनडिस्गाइज्ड लुक्स थे, जिसके मम्मी पापा टॉल और हैंडसम थे, और वो अपने एंसेस्टर हॉल मतलब अपने दादा पर दादा के बनाए हुए घर में, जो कि 19th सेंचुरी की मिडिल में बना था। और वो एक बड़ा पक्का हाउस था जो कि लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था, मॉस्की स्ट्रीट पे, रामेश्वरम की। उसके जो स्ट्रिक्ट फादर थे, वो सारी इन एसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज को अवॉइड करते थे। लेकिन उसे खाने में, मेडिसिन में, क्लोथ्स में सारी नेसेसिटीज मिलती थी। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं देते थे, पर एक्स्ट्रा नेसेसिटीज अवॉइड करते थे। इनफैक्ट वो कहता था कि उसका जो चाइल्डहुड था बहुत ही ज्यादा सिक्योर था, मटेरियली और इमोशनली दोनों। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reason I had never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. A day's collection would fetch me the princely sum of one anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinami. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspension of the train halt in Rameswaram station. The newspaper now had been bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between the Rameswaram and Dhanuskodi. Therefore, that forced my cousin Samsuddin, who disturbed newspapers in Rameswaram, to look for in a helping hand to catch the bundles and his death. Naturally, I failed the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. तो इसमें क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, तब वो 8 साल का था।
वो उसके पास कभी भी उसको समझ नहीं आई कि टर्मरिक की इतनी डिमांड क्यों थी मार्केट में। वो उनको कलेक्ट करता प्रोविजन शॉप में, और वो कलेक्ट करता था चीज को प्रोविजन शॉप में मौसमी स्टिक पे बेच देता था। उसकी दिन की कलेक्शन एक अन्ना होती थी। उसका भाई भाई जो था, ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, वो उसको वर्ल्ड वॉर वॉर की स्टोरीज बताता था, जिसे वो सोच रहा था कि देनामी एक न्यूज़पेपर होगा उस टाइम का, उसमें वो उसको ट्रेस करे। वो उनका एरिया आइसोलेटेड था और कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था वॉर के। बट जो इंडिया था वो उसको जल्दी ही अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करनी पड़े, और एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। उसके बाद सबसे पहले तो हुआ कि उनको न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम होने लगी। अब न्यूज़पेपर के बंडल बना के उन्हें स्टेशन मूविंग ट्रेन से रामेश्वरम रोड पे, रामेश्वरम और धांसकूदी के बीच में फेंक देने लगे थे। शामसुद्दीन जो कि न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में, अब उसे एक हेल्प चाहिए थी जो उस बंडल को पकड़ के हेल्प करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करे। उसने उसकी वो जगह भर दी, मतलब वो काम करने लग गया। और उसके भाई ने उसको, मतलब कजन ने उसके फर्स्ट स्टेजेस अर्न करने में हेल्प किया। हाफ अ सेंचुरी लेटर वो उसको फिर भी प्राइड थी अपने अपने खुद से पैसा कमाने की। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment, and trained in certain ways by the figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and keep deep kindness, and so did my three brothers and sisters. I had three close friends in my childhood: Ramanatha Sastri, Aravindan, and Srivas Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt that any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Sastri was the son of Prakash Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for the visiting pilgrims, and Siva Saprakasam became a catering contractor on the southern railways. तो इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि हर चाइल्ड बॉर्न होता है और वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने मम्मी पापा से ले ही लेता है। तो और जैसे और वो बड़ा होता है उस हिसाब से भी उसने, कहते हैं कि वो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन उसने अपने फादर से ली। और उसके मदर से उसने गुडनेस में भरोसा और डीप काइंडनेस, मतलब अच्छी करना सीखा। और उसके तीन भाई बहनों ने भी वही सीखा। उसके तीन दोस्त भी थे चाइल्डहुड में: अरविंदन, श्रीवासा प्रकाशन और रमनादा शास्त्री, जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज में से थे। उनको कभी कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ क्योंकि वो थे तो बच्चे। अब और जो रमानाथ शास्त्री था वो लक्ष्मणा शास्त्री हाईएस्ट प्रीस्ट, मतलब हाईएस्ट पंडित रामेश्वरम टेम्पल का था। तो उसने उनसे बाद में प्रीस्टहुड ले ली रामेश्वरम टेम्पल की जब वो बड़ा हो गया। अरविंदन ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिसमें वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था पिलग्रिम्स विजिट करने वालों के लिए। शिव प्रसाद प्रक्रम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउदर्न रेलवेज के। During the annual Sri Sitaramana Kalyam ceremony, a family used to arrange boats with a special platform or carrying idols of the Lord Rama from the temple to marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. तो हुआ क्या कि जब जब एनुअल स्त्री सीतारामा कल्याण सेरेमनी होती थी तो उनकी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी और एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ जिसमें आइडल्स हम रख के ले जा सके लॉर्ड के। और वो टेम्पल मैरिज साइट जो कि पॉन्ड के बीच में सिचुएटेड होती थी जिसका नाम रामा तीर्था होता था। जो रामायणा के इवेंट्स और लाइफ ऑफ प्रॉफिट की बेड टाइम स्टोरीज उसकी मदर और ग्रैंड मदर उसे सुनाया करती थी जब वो बच्चा था। One day, when I was in fifth standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Sastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy.
In accordance with the social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, so did Ramanatha Shastri. He looked utterly downcast as I was shifted my seat in the last row. The image was weeping I shifted to the last row and felt a lasting impression on me. तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि एक दिन जब वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में तो एक न्यू टीचर आता है क्लास में और वो एक ऐसा कैप पहनते थे जो उन्हें बताता था कि वो मुस्लिम है जिनसे पता चलता था जो फर्स्ट बेंच पे रमानाथ शास्त्री के साथ बैठते थे जो कि सेक्रेट थ्रेड पहनते थे जिससे पता चलता था कि हिंदू है तो न्यू टीचर को मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाया कि हिंदू क्रिश्चियन एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है तो उसने सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसने उसको बोला कि जाओ तुम जाके बैक बेंच पे बैठो तो उसको बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी लगा उसमें वो काफी वो दुखी दुखी सा लगा क्योंकि उसकी सीट जो थी लास्ट रो में शिफ्ट कर दी थी वो इमेज बड़ी दुखी वाली थी जब उसे लास्ट रो पे अकेला छोड़ दिया After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher should not spread the poison of social inequality, communal intolerance in the minds of the innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or to quit the school and the island. Not only the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lamana Shastri conveyed ultimately reformed this यंग टीचर तो इसमें क्या होता है कि वो अपने स्कूल पे स्कूल के बाद जब घर गए उन्होंने अपने अपने मम्मी पापा को इस इंसिडेंट के बारे में बताया लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को सम्मान किया मतलब अपने बुलाया और हमारे मतलब हमारे नहीं मतलब उन दो बच्चों के प्रेजेंस में उस टीचर को बोला कि तुम्हें ऐसे जहर नहीं फैलाना चाहिए सोशल इनइक्वालिटी के बारे में और कम्युनल इंटॉलरेंस के बारे में इन इनोसेंट चिल्ड्रन के दिमाग में तो उसने ब्लंटली मतलब गुस्से से पूछा टीचर को कि चाहे तो तुम माफी मांगो या स्कूल को और आइलैंड को छोड़ के चले जाओ उसने टीचर ने रिग्रेट ही नहीं किया बल्कि उससे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्विक्शन भी मिली कि उस जिसने उस यंग टीचर को रिफॉर्म कर दिया मतलब उसको भी लगा कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए On the whole, the small young society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Sivusramana Layar, through an orthodox Brahmin, was a very conservative wife was something of a rebel. He did his best work to break social barriers so that the people wearing backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and say, Kalam, I would tell you to develop so that you are a par and the highly educated people of the big cities. तो इससे हमें पता चलता है कि काफी ऐसे सोशल ग्रुप्स को बहुत लोग ऐसे थे कि जो सोशल ग्रुप्स के साथ थे कि इनको अलग होना चाहिए कुछ थे जो इनके खिलाफ भी थे जैसे कि जो साइंस टीचर उनके थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण के फैमिली में से थे कंजर्वेटिव वाइफ के साथ जो कि काफी सीरियस थी कि कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए थे वो अपने बेस्ट करते थे ये सोशल बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए है ना ये कलाम के साथ काफी आवर स्पेंड करते थे और वो कहते थे कि आई वांट टू यू टू डेवलप सो दैट आर यू आर ऑन अ पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज ये काफी कोशिश करते थे ताकि ताकि मतलब ये सारे बैरियर्स जितने भी है सोशल सोशल वाले बैरियर्स की ऐसा कोई ये हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं खा सकते पढ़ नहीं सकते या बैठ नहीं सकते तो वो काफी कोशिश करते थे One day he invited to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramanian Liar got perturbed. Nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed my difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after meal. When I was leaving his house, Siva Subramanian Iyer invited me to join him for dinner next weekend. Observing my hesitation, he told not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Siva Subramania Layer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands.
तो एक दिन उनको ना वो अपने मील के लिए इनवाइट करता है, और उसकी जो वाइफ थी काफी डरी हुई, हॉरिफाइड, मतलब काफी डरी गुस्से थी कि एक मुस्लिम बॉय उसके प्योर रिचुअली किचन, मतलब जिसमें सिर्फ हिंदू हिंदू ही खा सकते हो, एक रिलीजन मतलब मुस्लिम नहीं खा सकते, उस किचन में वो उसे खिलाएगी। तो उसने उसे मना कर दिया कि सर्व नहीं करेगी। शिवा सुब्रमण्यम लायर गुस्सा हो गया, और ना ही उसे वो सिर्फ गुस्सा ही नहीं हुआ, उसने अपनी वाइफ से गुस्सा होके पर उसने सर्व भी किया उसको खाने से अपने हाथों से, और उसके पास में खाने बैठ गया। उसकी वाइफ ने उसे पीछे से देखा। अब ये सोचता है कि क्या उसकी वाइफ ने कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया होगा, कि जैसे वो राइस खाता है, पानी पीता है और खाने के बाद अपने फ्लोर को साफ करता है। जब वो उसे लीव कर रहा होता है उसके घर को, शिवा सुब्रमण्यम लायर उसे वापस से डिनर के लिए बुलाता है नेक्स्ट वीकेंड। जब उसकी हेजिटेशन, मतलब कि आना है या सच्ची ऐसे आना है, ऐसे करता है, तो फिर वो कहता है कि जब तुम एक बार सिस्टम को चेंज करने के लिए डिसाइड कर लेते हो, प्रॉब्लम्स ने तो आना ही है। जब उसको नेक्स्ट वीक उसके हाउस को विजिट किया, तो उसकी जो शिवा सुब्रमण्यम के लायर की वाइफ थी, वो खुद उसे किचन में ले जाके उसको खाना सर्व करती है अपने हाथों से। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो तब तब जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, और फ्रीडम इंडिया की इमिनेंट थी, मतलब होनी ही थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ऐसा गांधी जी ने कहा। होल कंट्री को अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म से भर गई थी। तो उसने अपने फादर से पूछा कि क्या मैं रामेश्वरम छोड़ के डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स ऑफ रामनाथपुरम पे पढ़ने जा सकता हूँ। तो आगे तो ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अबाउट, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, डज द seagull not fly across the sun alone with the nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children, they are the sons and the daughters of the lives longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. और ये स्टोरी लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के थ्रू, और ये एक एक्सट्रैक्ट है विंग्स फ्रॉम द फायर में से। तो ये था हमारा चैप्टर माय चाइल्डहुड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया हो तो प्लीज इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।